Hello, my dear students. Welcome to Social Studies class. Today we are going to begin with civics lesson number 7, that is totally about district administration. In the previous two lessons we have learnt about the Panchayati Raj system at 3 levels in the rural areas, and also we have learnt in the 6th lesson we have studied about the urban local government, that is about Nagar Panchayat, that is Nagar Palika, Municipal Corporation and Municipal Council, that we have studied. And in Panchayati Raj at rural areas, that is in the village, we have studied the 3 levels, that Gram Panchayat at the village level, then Block Samiti at the block level, and the third is Zilla Parishad at the district level. And in this lesson, we'll only totally study about the district administration, the structure of district administration and the function of district administration. Here you can see one on page 256. Open your textbook, children. On page 256, here you can see the flow chart, that is hierarchy of urban self government. That is first is ट्रांजिशनल एरिया, दैट इज़ विच इज़ टर्निंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, मतलब जो गांव से शहर की तरफ बढ़ रही है, गांव से शहर में कन्वर्ट होने की कोशिश में है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल एरिया. एंड हियर वी हैव नगर पालिका. देन वी हैव द टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ अ स्मॉल सिटी, वी हैव म्यूनिसिपल काउंसिल. And the big metropolitan cities like Mumbai, Ahmedabad and all that, we have municipal corporation. So this we have studied in the 6th lesson, what we are doing here. Now turn your page to 257, children. We'll start with the district administration here. The population of India is estimated to be about 1.2 billion. It is the second most populated country in the world after China. So in the world it is at the second number in terms of population. India has 29 states and 7 union territories. Here we will just have a correction, children. Now there are 26 states, children, as a what we say, Jammu and Kashmir were 28 states as Jammu and Kashmir, which was a state, now it is divided into 2 territories, and 9 union territories instead of 7 union territories. It is 9 here because of the division of Jammu and Kashmir, children, here. So 28 states and 9 union territories. Here you can correct it. Each state varies in size and population. So here we are described about the political division of India. 28 states, 9 union territories, and each state is divided into small areas which are known as districts. So state again is divided into district, and so that the government can be easily maintained, they can maintain law and order, the administration can be carried out properly. So here the districts are the main part of the state. So the whole state government cannot look after the entire state, so it is divided into districts. And now districts are further divided into 3 to 5 subdivisions. A subdivisional magistrate is in charge of a subdivision. So again the district is divided into 5 subdivisions, and a subdivisional magistrate is in charge of a subdivisions, are further divided into tehsils or talukas. Again this subdivision of the district is in tehsil or taluka, and tehsildar is in charge of a taluka or tehsil. So here you have to understand, children, state are divided into district. Suppose in Gujarat there are 33 districts. Each district is divided into 5 subdivision. Then each subdivision, the head is the magistrate. Then that subdivision is further divided into talukas, and in each taluka there is in charge is the tehsildar. So this way you have to remember. Now we go to the structure of district administration, how the administration of district is carried out. You should always remember district collector or a deputy commissioner, DC. District collector is the main head of the district. He is the member of Indian Administrative Service. So those who have given IAS, sorry children, IAS examination, they are the member of this IAS, and the person can become a district collector. The headquarters of district collector are located in the district town. So suppose our Valsad district, the head, that is his office is in Valsad only, because our district is Valsad, children. He is assisted by other officers like assistant deputy collector, the tehsildar, the superintendent of police that I have explained you previous lesson also, the chief medical officer, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हम लोग DEO बोलते हैं, जो अपने स्कूल के सब रूल्स वगैरह आते हैं वो वलसाड़ से आते हैं. सो एंटायर वलसाड़ की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट कम्स फ्रॉम द DEO, हु इज़
who is under what? District collector and the block development officer. So the main is the district collector, उनके नीचे है assistant deputy collector and उनको support करने के लिए तहसीलदार of each तालुका, SP that is superintendent of police, then there is a chief medical officer of the entire district and the district education officer and the block development officer of entire block. Here you can see in the info pable box the हायरार्की ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट में कैसे लेवल्स होते हैं. द फर्स्ट लेवल एट द टॉप मोस्ट लेवल इज़ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, उनके नीचे है डीएसपी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके नीचे होते हैं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इज़ इन चार्ज ऑफ वन थाना, उनके नीचे होते हैं सब इंस्पेक्टर, उनके नीचे होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल दिस इज़ द हायरार्की, मतलब ये लेवल्स है पुलिस के एक डिस्ट्रिक्ट में. सो पुलिस की जो अथॉरिटी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एसपी, then DSP, then inspector, then sub inspector, then assistant sub inspector, head constable and constable. So these are the hierarchy of police. Now what is the function of district administration? Here it is maintenance of law and order, maintenance of land records, that is regarding the collection of land revenue, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से टैक्स कलेक्ट होता है. So that maintenance is done by district administration. Civic amenities and services, मतलब roads, bridges, schools, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना, पोस्टल सर्विस एंड ऑल दैट. प्रोविजन ऑफ रिलीफ वर्क ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड अर्थक्वेक्स, मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ इफेक्ट हुआ है, जैसे कोई अभी अपने यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा है तो उसकी सब सुविधाएं देना, या कोई भी फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, ऑल दिस सुनामी आता है तो उसकी सब रिलीफ वर्क करवाना, लोगों को बचाना. सुपरविजन ऑफ पंचायती राज बॉडीज़, मतलब उनके अंडर में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ब्लॉक समिति है, उनके अंडर में ग्राम पंचायत आता है, किसके अंडर में? डिस्ट्रिक्ट के अंडर में. ये सब 2 लेवल्स आते हैं. दे हैव टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ दिस अदर पंचायत समिति बॉडीज़. सुपरविजन ऑफ जेल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जेल के बारे में सब ध्यान रखना, जेलर को सब इंस्ट्रक्शंस देना. एंड डेवलपमेंटल स्किल, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी स्कीम्स बनाना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना. दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ वी गो टू द फर्स्ट मेन फंक्शन, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ डिस्ट्रिक्ट. The superintendent of police assists him in this task. So main work is of maintenance of law and order, and SP is the main assistant of district collector, मतलब यहाँ पर main help करते हैं. And the superintendent of police is the highest ranking police officer in district. मैंने आपको बताया सबसे highest level पे. So this info pable box you have to draw, children, because SP is the main top most police officer in the district. Again the district is divided, I told you, 5 to 6 subdivision. Each subdivision is further divided into police circles. A police circle has about 10 police station, इसको हम लोग थाना बोलते हैं. Turn your page, children. Each police station is under the charge of deputy superintendent. Each police circle is under the charge of inspector of police. So these are the divisions of the police, children. Here which division the police is there? Main is the SP, then the deputy superintendent, and each police circle में एक इंस्पेक्टर होते हैं. There is a special wing, info pable box में दिया है, there is a special wing in the police department called the criminal investigation department, CID जिसको हम लोग बोलते हैं, which is responsible for investigation of criminal activities. मतलब कुछ भी क्राइम हुआ तो उसका इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस बराबर नहीं करवा सकती तो उसकी हेल्प कौन करता है? CID करते हैं. दैट इज़ क्रिमिनल, फुल फॉर्म ऑफ CID इज़ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. Now the second important function is maintenance of land records and collection of land revenue, के किससे कितना टैक्स कलेक्ट करना है उसके बारे में पहले उनकी लैंड की जानकारी होनी जरूरी, किसके नाम पर कितना लैंड है. All this is done by the district collector. This is the main function of the district collector, children. So here in India land is the main source of income. So चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रेंट पे देते हो, तो it is the main source of income. In village disputes over land are common. And to resolve such problems, the government has appointed officers at different levels. A patwari is appointed by the government to maintain and update the land records of both barren and cultivated. तो जो खाली ज़मीन है जिसके ऊपर कुछ उगता नहीं है उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, बिकॉज लैंड के कारण ही बहुत गाँव में डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं किसके नाम पे कहाँ तक किसकी ज़मीन है. सो पटवारी इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू अपडेट द लैंड रिकॉर्ड्स. एंड ही इज सुपरवाइज्ड बाय नायब तहसीलदार, मतलब पटवारी के ऊपर है नायब तहसीलदार जो देखता है कि पटवारी बराबर काम कर रहा है कि नहीं. सो पटवारी का काम कौन सुपरवाइज करता है? नायब तहसीलदार. ही इवन कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यू एंड कंट्रोल्स लैंड सेटलमेंट, तो ये सब लैंड रेवेन्यू का टैक्स कलेक्ट करना
अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसका सेटलमेंट करवाना, दैट इज़ द वर्क ऑफ नायब तहसीलदार. Other officers like तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कनुंगोस, पटवारीज assist the district collector, DC मतलब district collector और deputy commissioner to maintain land records and settle land disputes in their respective areas. तो ये अपने अपने एरिया में उन लोगों को डिवाइड किया जाता है और उन लोग अपना लैंड रिकॉर्ड बराबर मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सब अपना उसका अपडेट देते हैं. Since India is an agricultural country, land revenue is the most important source of income. See children, land revenue is the most important source of income. The district collector or the DC administers the land revenue of the district. So his work is to maintain the land revenue. District collector वो ध्यान देते हैं किसका कितना land है. He supervises the work of patwari. For an efficient administration of revenue collection, each district is divided into tehsil or taluka. These are under a तहसीलदार who is assisted by नायब तहसीलदार and a कनुंगो. ये सब ऑफिसर्स के नाम है जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हेल्प करते हैं इन ईच तालुका. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज अ प्रोविजन ऑफ सिविक एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज. मतलब सिविक एमिनिटीज़ मतलब चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोड्स हो, चाहे डैम्स हो, चाहे स्कूल्स हो, ऑल दिस इज डन एंड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फंक्शन है. It is the responsibility of the district administration to provide civic amenities to all inhabitants of the district. Civic amenities include health care, education, employment opportunities, sanitation, proper roads, etc. These are the amenities. The officers who help in providing civic amenities in a district are कौन help करते हैं. District civil surgeon is in charge of the healthcare facilities in a district. She needs to ensure that the district is safe from epidemics and supervises the various medical outlets like hospitals, dispensaries. तो एक इसकी ड्यूटी है. डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी कैसे सब बराबर चल रही है कि नहीं. सेकेंड इज़ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो पूरे स्कूल्स कॉलेजेस का सब मुआयना करते हैं, सब ध्यान देते हैं. द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इज़ इन चार्ज ऑफ द एजुकेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट. ही सुपरवाइजेज द एजुकेशन डिपार्टमेंट. मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स का तो ध्यान देना ही है, बट प्राइवेट स्कूल को भी इंस्ट्रक्शंस DEO ही देते हैं. एंड हैज़ टू एंश्योर दैट प्रॉपर एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल्स रन बाय द गवर्नमेंट. स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में सब बराबर बच्चे पढ़ रहे कि नहीं, उनको बराबर टीचर्स पढ़ा रहे कि नहीं. ऑल दिस इज डन बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड ही ओनली he only gives out the different rules and regulations for the other schools which are run privately also. Third is executive engineer is the head of PWD मतलब public work department जो responsible है roads bridges बनाने के लिए. The PWD is responsible for proper construction and maintenance of government buildings and roads. So these are the important civic functions that is provided by district collector. Now the फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन इज रिलीफ वर्क. मतलब जब भी फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, तभी डिस्ट्रिक्ट क्या करती है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्रॉट्स एंड सुनामी यूजुअली टेक पीपल बाय सरप्राइज एंड देयर इज हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. मतलब ये बोल के नहीं आते हैं, इट कम्स अचानक, एकदम अचानक से आता है. सो दे आर पीपल डोंट नो व्हाट टू डू एंड देयर इज अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. At this time, it is the responsibility of district collector to provide proper government aid. Aid यानी help and relief. Relief मतलब लोगों को बचाना वहाँ से during such natural calamities. उस बचाने के बाद उनको सब proper food, रहने की जगह सब etc. प्रोवाइड करना. The financial aid मतलब financial help for the relief work is provided by from the district relief fund. एक fund होता है district relief fund जो लोग वहाँ पर donations भी दे सकते हैं. जैसे अपना PM relief fund था बीच में, जैसे लोगों को help करने के लिए. Always there are relief funds we should donate. ये डोनेशन कभी भी इमरजेंसी में काम गवर्नमेंट को आ सकता है. सो वी शुड ऑलवेज डोनेट इन सच टाइप्स ऑफ रिलीफ फंड. चिल्ड्रन रिमेंबर दिस. नाउ द नेक्स्ट इज द ट्रू और फॉल्स दैट आई विल बी गिविंग यू द नोट्स दैट टाइम आई विल सेंड यू. नाउ हु सुपरवाइजेज दिस. दे सी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सब ध्यान देना है, क्या क्या करना है. देखो, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज एंड सर्विसेज, फिर हेल्प ड्यूरिंग रिलीफ वर्क, और साथ साथ में प्रोविजन ऑफ सुपरविजन ऑफ पंचायती राज बॉडीज. मतलब उनके नीचे जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, ब्लॉक समिति आते हैं, उनको भी सुपरवाइज करना. इन इस डिस्ट्रिक्ट द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इज सुपरवाइज्ड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर. ये सब कमिश्नर का ही काम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ही काम है इन सबको सुपरवाइज करना. ही डायरेक्ट्स एंड गाइड्स द लोकल बॉडीज टू फंक्शन प्रॉपरली एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब ये लिंक है ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति में जो भी काम हो रहा है उसका पूरा
चिट्ठा मतलब लिखा चिट्ठा, पूरा अकाउंट्स जितना भी सब है वो सब देना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को देंगे. सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद इज द लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल दिस अदर पंचायती राज लोकल बॉडीज. नाउ जेल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन ऑफ जेल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ. देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कितना काम है. सो IAS एग्जाम देकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना ईजी है, उसके बाद देखो काम कितना करना है, कितने फंक्शंस है. Every district has a jail where culprits or prisoners are kept. A jailer is in charge of jails. Jailer मतलब जो जेल में रहता है वो नहीं, जो जेल कैदियों का ध्यान रखते हैं, कैदियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं. He is called jailer. In a jail, the prisoners are taught various skills like weaving, carpentry or even yoga or computers. See देखो आजकल के ज़माने में जेल में जो प्रिजनर्स आते हैं, जो क्रिमिनल्स आते हैं, उनको ऐसे ही बैठ के नहीं खिलाते. दे आर टॉट सम और दी अदर काइंड ऑफ स्किल्स. खाली पत्थर तोड़ना अपने को पिक्चर में दिखाई देता है कि पत्थर तोड़ रहे. नो, नाउअडेज इन जेल दे आर टॉट डिफरेंट स्मॉल स्किल्स. वीविंग करना, कपड़ा बनाना, बास्केट्स बनाना, फिर कुछ छोटा मोटा सब काम करना, बैठे बैठे योगा करवाना, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना. ऑल दिस इज डन इन द जेल. सो मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ओवर द जेल्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट. तो कभी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कभी भी जेल में आकर उसका सुपरविजन कर सकते हैं कि जेल में ये सब एक्टिविटीज़ बराबर हो रही है कि नहीं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंटल स्कीम. मतलब जो समझो अपने वलसाड डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए उसका काम कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. सो वैसे ही एक एक ज़िले में यानी एक एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट स्कीम होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो द वर्क डन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. इन इंडिया द डिस्ट्रिक्ट हैज़ ऑलवेज बीन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. चिल्ड्रन, स्टेट पूरा डेवलप कब होगा? जब एक एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगी. सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. चिल्ड्रन, सो डेवलपमेंट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. मतलब गांव से शुरू होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से शुरू होना चाहिए, तब जाके वो स्टेट में डेवलपमेंट होगा और तब जाके कंट्री में डेवलपमेंट होगा. वेरियस सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैव टू बी अंडरटेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. बहुत सारे स्कीम्स बनानी पड़ती है गवर्नमेंट को, स्पेशली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि सबको फ़ायदा हो, स्टेट का फ़ायदा और ओवरऑल कंट्री का भी फ़ायदा हो सके. नाउ द लास्ट पैराग्राफ इज इन अ डिस्ट्रिक्ट कौन सी डेवलपमेंटल स्कीम हो सकती है? इन द फील्ड लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सैनिटेशन हैव टू बी अंडरटेकन. बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्कीम बनाते हैं गवर्नमेंट. क्या क्या स्कीम है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सब सच में स्कीम्स के नाम है. हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट. कौन सी वाली? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट. नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम इज फॉर द फैमिलीज विच आर वेरी पुअर, दैट इज BPL के लोगों के लिए, मतलब बिलो पावर्टी लाइन वालों के लिए. टोटल सैनिटेशन कैंपेन प्रोजेक्ट्स एंड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर. मतलब खेत वगैरह में पानी अच्छे से हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ये सब का ध्यान भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ही फंक्शंस में आता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. नाउ द समरी विल जस्ट गो थ्रू द समरी. चिल्ड्रन, द डिस्ट्रिक्ट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब स्टेट के अंदर स्टेट का डिवीजन होता है डिस्ट्रिक्ट्स में. स्टेट्स आर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एरियाज नोन एज डिस्ट्रिक्ट. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट लैंड रेवेन्यू करते हैं. Then they also provide civic amenities and services. They also provide help during the epidemics or droughts and natural calamities. They supervise the work of the panchayat. They supervise the work of the jailer. They implement the development scheme. So superintendent of police, ये पुलिस के जो हेड है वो उसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. उनकी पूरी हायरार्की है, मतलब उनके नीचे आते हैं DSP यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके नीचे आते हैं फिर इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, like that all these divisions are there. So superintendent of police is the head of the police department. It is the responsibility of the district administration to help people in times of natural calamities. So I hope children you have understood the working of the district administration and the functions of the district administration. Remember the head is the district collector. I hope you have understood the lesson, children. Okay, thank you for now, and I will be sending you the notes soon. So kindly copy the notes in your notebook and ask your doubts whenever you want on the WhatsApp group. Okay, thank you.